Hello everyone. Welcome to today's session of Certified Ethical Hacking. I hope you are able to hear me and able to see the screen. Kindly confirm once in the live chat. Okay. So what topics we discussed in the last session? Anyone of you? Yeah. Good morning, everyone. It's a little bit of late. Good morning, but still. तो last session हम लोगों ने क्या discuss किया था? Anyone of you? Sniffing theory, right? Yes. So today, what we'll do is we'll be having some practicals on sniffing. So as you know, in the last session we discussed about a lot of things on sniffing, that what exactly is sniffing, what is DNS spoofing, what is MAC spoofing. तो ये सारी चीज जो है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक स्पूफिंग से. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि मैक एड्रेस का पता कैसे लगाया जाता है. सो एनी वन ऑफ यू हु नोज हाउ टू फाइंड मैक एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम? ipconfig all. Okay. And what's for Linux? ifconfig. Okay, no worries. So yeah, so ipconfig helps us to get the MAC address of the particular adapter here. So let's start the lab here, and we'll see with the help of the softwares and the tools how can you spoof the MAC address. Okay, so MAC address is a physical address as already discussed. Okay, अगर आपने कोई illegal activities किया कहीं पे भी, तो MAC एड्रेस के थ्रू ट्रैकिंग जो है पॉसिबल होता है. भले आपने IP एड्रेस भी स्पूफ कर लिया हो, बट MAC एड्रेस से ट्रैकिंग बहुत ही इजीली हो जाती है. और लोग जनरली MAC एड्रेस को स्पूफ नहीं करते. क्यों? क्योंकि उनको डर होता है कि MAC एड्रेस से कुछ छेड़छाड़ किया उन लोगों ने तो उनका सिस्टम में इशू आ जाएंगे. उनके मतलब ऐसे हैकर्स जो स्क्रिप्ट किडीज हों. सो एनी वन ऑफ यू नो अबाउट अ स्क्रिप्ट किडी हियर? स्क्रिप्ट किडी भी, या फिर कोई ऐसे हैकर्स जो जनरली डरते हैं कि ये नहीं करते हैं, डायरेक्टली करते हैं. तो स्क्रिप्ट किडी क्या होता है? अ स्क्रिप्ट किडी इज समवन हु नोज दैट कि यूट्यूब पे मैंने देखा ये कुछ चीज, उसको परफॉर्म कर लेते हैं. यहाँ पे बताया गया था कि इस बटन पे क्लिक करना है, उस बटन पे क्लिक करना है, हो गया. उनको कहते हैं स्क्रिप्ट किडीज, जिनको पता है कि ये 4 स्टेप कर लेने पे हैकिंग हो जाती है, जहाँ पे लॉजिक का कोई यूज नहीं होता है. और क्योंकि सारा सब चीज जो है वो डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन, राइट? सिचुएशन, बेस्ड ऑन द सिचुएशन वी नीड टू यूज द लॉजिक. बट जो लॉजिक यूज नहीं करते हैं, जिन लोगों ने सिर्फ मेमोराइज कर लिया है कि स्टेप 1 इस बटन पे क्लिक करो, स्टेप 2 उस बटन क्लिक करो, स्टेप इस बटन पे क्लिक करो, हैकिंग हो जाएगा. दोज आर नोन एज स्क्रिप्ट किडीज. तो इस केस में क्या होता है, जनरली लोग ट्राई करने के बहाने ये चीज करने की कोशिश करते हैं. कहीं की लॉगर प्लांट कर दिया किसी कैफे में जाके, कुछ कर दिया कहीं जाके, और देन जब ये बात आता है कि किस के थ्रू ये हुआ है, तब मैक एड्रेस से इजीली सिस्टम ट्रैक हो जाता है, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि मैक एड्रेस कैसे चेंज करना है, राइट? सो मैक एड्रेस स्पूफ करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है एक हैकर के लिए. सो हाउ टू स्पूफ अ मैक एड्रेस? लेट्स सी. Let's start our sniffing module here. Wait for a moment.
Yeah, this is the Telegram number, Karthik. You can just save this. You can ping me on Telegram if you need any help. Okay. Okay, so let's start then. So we are into this uh, iLab of sniffing module. So what we need to do in this module is we'll perform network sniffing. Okay. So first we'll do MAC spoofing, MAC flooding things and all. Then we'll see the ARP poisoning, how to poison with the help of ARP. Then we'll see man in the middle attack. So these things we'll do. No, sorry. First we'll do this, spoofing the MAC address. Then we'll do man in the middle attack. Then we'll do ARP poisoning attack. Okay. These two we'll do in the other session. These two along with these. Okay. So first, today we'll do these things. Spoofing a MAC address, performing man the middle attack, like get passwords, work, and then ARP poisoning. So MAC address is clear to every one of you. What is man in the middle attack? Anyone? If you remember from the last session what we discussed, what is MITM? Everyone, you're able to hear my voice properly? Let me know. Okay, I have done some configuration in the router. Now my voice is audible.
Okay then. Yeah, so we were discussing about sniffing man in the middle attack. So yeah, man in the middle attack means that you need to connect in between the connection in between two computer systems, and then you need to start sniffing the data. That's what we do in the sniffing. Okay. So yeah, these so MITM practical will do with the help of a software known as Kane Enable. Kane Enable. How many of you heard about Kane Enable? So basically, just a minute. So basically, Cain and Abel, like it's a kind of these names are from the biblical book of you say from Christianity. Okay, like you might have heard about Jesus, God Jesus, right? So Cain and Abel are the first two sons of Adam and Eve. Okay, so Cain was the firstborn. It was like he was a farmer, and Abel was his brother. His brother. Okay, so based on that, this software is released known as Cain and Abel. Okay, on their name. This Cain and Abel tool is very popular, which is used for MITM attacks, man in the middle attack. Okay, सबसे पहले हम लोग मैक स्पूफिंग करते हैं. तो आईपी कॉन्फ़िग के हेल्प से भी हम लोग को मैक एड्रेस जो है वो मिल सकता है. ओके, बट विंडोज में जनरली आईपी कॉन्फ़िग के हेल्प से भी ये चीज हम लोग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आईपी कॉन्फ़िग. तो यहाँ पे हम लोग को मैक एड्रेस नहीं मिला. आईपी कॉन्फ़िग ऑल. सो ये हमारा मैक एड्रेस है एवरीवन. सो आप देख सकते हो कि मैक एड्रेस जो है वो ये है. ठीक है, क्योंकि हमारा जो अडाप्टर है वो माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी नेटवर्क अडाप्टर, इसका जो मैक एड्रेस है वो ये है, जिसको फिजिकल एड्रेस के उस पर दिखाया जा रहा है. अब सेम चीज हमको दिखेगा अपने मैक स्पूफिंग टूल में भी. ठीक है, सो फर्स्ट यू नीड टू गो टू योर टूल्स फोल्डर. स्निफिंग, मैक स्पूफिंग. सो हमारे पास दो टूल्स हैं, एस मैक एंड टी मैक. Let's use this Mac. Open this. Install this. And launch. So ये कुछ ऐसा दिखता है अपना जो स्मैक टूल है. ठीक है, रजिस्ट्रेशन बाद में करेंगे, तो स्किप करोगे. ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी नेटवर्क अडेप्टर 2, जो कि सेम चीज हमको दिख रहा था अपने सीएमडी में भी. राइट, मैच कर लेते हैं. सीएमडी तो मैंने क्लोज कर दिया, बट यू सी लाइक यही था ना. राइट, और ये था हमारा मैक एड्रेस. ये करेंटली मैक एड्रेस है, और यहाँ पे दिखा रहा है नॉट स्पूफ, विच मीन्स दिस करंट स्टेटस इज नॉट स्पूफ. तो स्पूफ कैसे किया जाता है? स्पूफ करने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. वो ये है कि अगर आपका लैपटॉप सिस्टम वारंटी में है और आप मैक एड्रेस को चेंज कर देते हो, तो आपका वारंटी चेंज हो जाएगा. बिकॉज मैक एड्रेस के बेसिस पे ही वारंटी आपका जो है वो डिपेंड करता है. मैक एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस है, वो एड्रेस अगर कंपनी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो ऑब्वियसली वो आपको वारंटी नहीं देगी. इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि यू कैन यूज ऑन VMware. VMware में अगर आपने विंडोज इंस्टॉल किया हुआ है, यू कैन यूज देयर ओनली. सो in this computer system we have this particular adapter. किसी किसी के लैपटॉप में ये 3-4 अडाप्टर दिखाई देगा. आपको उसमें से एक्चुअल वन सेलेक्ट करना होगा. कोई वायरलेस अडाप्टर होगा, कोई इथरनेट अडाप्टर होगा. ये वर्चुअल नेटवर्क अडाप्टर है, बिकॉज ये एक VMware है, iLab जो है. So in here we can select or use MAC address of different profile. You see, अलग अलग कंपनीज के आप MAC एड्रेस को यूज कर सकते हो. जैसे कि ये आप यूज कर सकते हो. उसके बाद अपना चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे. अब ये जो है रैंडम हो गया. आपको कुछ भी अगर आपके माइंड में है, कुछ भी आप MAC एड्रेस में चाहो वो डाल सकते हो यहाँ पे. ठीक है, एंड यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्रॉम, ताकि वो फेक ना लगे. ठीक है, तो करंट स्टेटस इज नॉट स्पूफ. सो लेट्स अपडेट मैक.
ओके, सो मैंने जो सेलेक्ट किया था वो तो नहीं हुआ चेंज, बिकॉज ये इवेल्युएशन मोड है, बट चेंज जो है वो हो गया। ओसी 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 01, क्योंकि ये फ्री वर्जन है इसलिए इसमें ऐसा हो रहा है। आई विल शेयर यू फ्यू ऑफ द कीज ऑफ दिस मैक टूल जो कि आप यूज कर सकते हो, and in that after using the keys you can simply change to anything you want. Okay, ओसी 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 जो है मैक एड्रेस चेंज हो गया और आपको स्टेटस दिखा रहा होगा कि स्पूफ्ड हो चुका है, और ये एक ईथरनेट था। तो आपके केस में आप चाहो तो वायरलेस में भी कर सकते हो, और देन रीस्टार्ट दी अडेप्टर। सो अडेप्टर जो रीस्टार्ट हो गया, अब हम सीएमडी में जाकर चेक करते हैं कि वो सही में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सो आईपी कॉन्फ़िग ऑल, और आप देख सकते हो कि हमारा फिजिकल एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है। ओसी 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 जो है चेंज हो गया। अब अगर आप कुछ करते हो ऑनलाइन, सो नो वन विल बी एबल टू ट्रेस यू, बिकॉज ये फिजिकल एड्रेस ही गलत है। अगर आपका मैक एड्रेस ट्रेसेबल होता तो आपके नाम पे अगर आपने लैपटॉप लिया है तो आपको इजीली ट्रेस कर सकते, कोई भी ट्रेस कर पाता आपको बहुत इजीली, बिकॉज वो जो सिस्टम है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। हाँ, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि चोरी के लैपटॉप जो होते हैं, चोरी के डिवाइस जो होते हैं, उनसे ये सब एक्टिविटीज किए जाते हैं, बिकॉज उसमें अगर मैक एड्रेस ट्रेस हुआ भी तो उसमें एक्चुअल ओनर का नाम आएगा, ना कि आपका नाम आएगा। दिस इज द मैक एड्रेस स्पूफिंग। ओके, नाउ लेट्स गो टू द TMAC. ओके, सो यू सी ऑल द अडेप्टर्स है, हमारे पास अब दो अडेप्टर मिल चुके हैं। एक ये अडेप्टर है, एक लोकल एरिया वाला है, तो ये काम नहीं कर रहा तो इसका नाम यहाँ पे नहीं आया, बट यहाँ पे ही आ रहा है। अब इस सॉफ्टवेयर के लिए ये जो मैक एड्रेस है वो तो न्यू है, बिकॉज इसमें देखो चेंज स्टेटस दिखा रहा है चेंज टू नो, विच मीन्स ये चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज किसी और सॉफ्टवेयर ने चेंज किया था, इसके पास वो डेटा नहीं है। And this is the Ethernet connection, Microsoft Hyper-V network adapter to original MAC address is this, unknown vendor, hardware, this, and configuration. Now, let's choose a random MAC address. तो हमने random MAC address choose कर लिया है और इसको क्लिक करते हैं change now पे, तो वो अब हो चुका है change। तो इस TMAC में आपको परचेज करने का जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज यूजिंग दिस एनी रैंडम। तो यहाँ पे हम लोग का चेंज जो है वो हो चुका है 0002B8 एंड ऑल। लेट्स वेरीफाई। You see that the name is now changed. The MAC address is now changed 0002B809FF11. Got it? Just like that, you can select any of the MAC address here. आप कुछ भी select कर सकते हो, change करो और वो change रहेगा वहाँ पे changed. Okay? और then आप कुछ एक्टिविटी करते हो तो आपका जो MAC address है वो traceable नहीं होगा, but obviously your warranty will be expired. Okay? दिस इज हाउ वी स्पूफ द मैक एड्रेस। ओके, आप चाहो तो आप किसी सामने वाले का भी आप मैक एड्रेस स्पूफ कर सकते हो। तो मैं चाहूँ तो आपके लैपटॉप का मैक एड्रेस स्पूफ कर सकता हूँ ताकि कोई ट्रेस हो तो आपका नाम आ जाए। सो ये प्रोसेस है मैक एड्रेस स्पूफिंग का। सो एनीवन एनी डाउट्स इन हियर, लेट मी नो। The process with this software, look,
software is simply doing the changes with the adapter. ठीक है, सब फॉर एग्जांपल अडाप्टर क्या होता है बेसिकली? तो अडाप्टर जो है आपके कंप्यूटर को एक नेटवर्क से कनेक्ट होने में हेल्प करता है, राइट? तो अगर आप यहाँ नेटवर्क सर्च करो, जैसे मैं जाता हूँ कंट्रोल पैनल में, ओके, so go to the network and internet. नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, सो ये हम लोग का अडाप्टर है, ठीक है। क्लिक हियर, हाँ, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स, तो ये अडाप्टर है हम लोग का, ठीक है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, कॉन्फ़िगर, एडवांस, डिटेल्स, so this is the property and all the details about the particular tool जो हमारा अडाप्टर है। अब वो जो सॉफ्टवेयर, अब बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में विंडोज हमको मैनुअली सब चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता है, तो इसको प्रोग्रामेटिकली चेंज करना पड़ता है बैक एंड से। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो ये पर्टिकुलर अडाप्टर है उसके ड्राइवर डिटेल्स में जाके मैक एड्रेस को फोर्सफुली चेंज कर देता है। जब फोर्सफुली वो चेंज हो जाता है तो कोई भी लॉस नहीं होता है, आपके बाकी के सॉफ्टवेयर भी एज इट इज काम करेंगे, बट जो आपका फिजिकल एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस कुछ कुछ चीज़ों के लिए मे भी यूज हो रहा हो, ठीक है। मे भी आपका कोई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है आपकी कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉय ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए इशू होगा बिकॉज वो मैक एड्रेस रजिस्टर होता है। अगर आपने चेंज किया तो आपका मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा, तो आपके वो टूल्स भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। एंड द सॉफ्टवेयर टीम एट एसमैट कैन इजीली राइट दीज थिंग्स, बस यही होता है। गॉट इट? विल चेंज अगेन ओरिजिनल मैक, आपको इसके लिए अपना ओरिजिनल एड्रेस याद रखना होगा। ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हो, तो आपको ओरिजिनल वाला पहले याद रखना होगा। आपको याद है तो वापस जाके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। विक्टिम का मैक एड्रेस आप कैसे चेंज करोगे? कोई मतलब ही नहीं है चेंज करने का विक्टिम का। विक्टिम के मैक एड्रेस, विक्टिम का मैक एड्रेस आपको चेंज करना है तो यू नीड टू इंस्टॉल दिस टी मैक इन दैट सिस्टम, बट विक्टिम का मैक एड्रेस चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अगर आपको चेंज करना है तो यू कैन यूज Metasploit and you can install these tools with the help of Trojans। आप क्या कर सकते हो कि इस टूल को बाइंड कर दो, बट वही चीज है कि यहाँ पे आपको मैनुअली करना होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। आप टी मैक यूज कर लो, एस मैक मत यूज करो। यू कैन यूज टी मैक, दिस वन, ओके। दिस सॉफ्टवेयर डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कीज एंड ऑल, कोई परचेज आपको नहीं करना है, इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी स्पूफ द मैक एड्रेस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्निफिंग का, ठीक है, एआरपी पॉइजनिंग। सो इसके लिए वी नीड टू सिस्टम्स, दोनों सिस्टम एक ही नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक सिस्टम जो है विक्टिम होगा और एक जो होगा वो अटैकर होगा। मैं विंडोज 10 यूज करूंगा अटैकर के लिए और 16 सर्वर 16 यूज करूंगा विक्टिम के लिए, ठीक है। सब यहाँ होगा क्या कि एक ही नेटवर्क में जब सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं और कोई अगर विक्टिम कुछ भी कर रहा हो, कहीं भी लॉग इन कर रहा हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट पे लॉग इन करे, फेसबुक पे लॉग इन करे, कहीं भी लॉग इन कर रहा हो, जब वो पासवर्ड डालेगा उस पासवर्ड को आप स्निफ कर सकते हो। चलो ठीक है, लॉगिन करने के बाद भी वो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो मैसेजिंग कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी अपलोड कर रहा हो, पासवर्ड चेंज कर रहा हो, सब चीज आप जो है वो स्निफ कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती है, एक होता है HTTP कनेक्शन और एक होता है HTTPS कनेक्शन। सो एवरीवन नोज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS क्विकली।
Okay. Yes, so HTTP is Hypertext Transfer Protocol, and HTTP is the secured layer of Hypertext Transfer Protocol. ठीक है? So HTTP में क्या होता है? जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो तो आप देखते होगे कि उसमें किसी में HTTP यूज होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल HTTP just a minute. आई थिंक मैक एड्रेस चेंज होने के कारण ये काम नहीं कर रहा है, बिकॉज ये एक iLab है, तो वो मैक एड्रेस से ही कनेक्टेड था। तो एक काम करते हैं, हम लोग उसको रीस्टार्ट करते हैं। Okay, so let's start the browser again, and let's now do the same thing. Just wait for a moment. Okay, now let's try to end.
Okay, so you see, once I try using HTTP, यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, connection is not secure because I have not used the HTTPS here, right? But जैसे ही मैं HTTPS यूज करता हूँ, you see, verified by Cloudflare, and this means connection is secure. Got it? So ये डिफरेंस क्या है? जब HTTP यूज करते हैं, उस कंडीशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अगर आप वेबसाइट पे कुछ भी डेटा को फीड करोगे, कुछ भी आप पासवर्ड डालोगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म भरोगे या कुछ भी करोगे, वो एक क्लियर टेक्स्ट में सर्वर तक जाता है। आपके सिस्टम से सर्वर तक वो क्लियर टेक्स्ट में जाता है, यानी कि बीच में कोई भी अगर कनेक्ट हुआ आपके नेटवर्क में और वो स्निफिंग कर रहा है, सो द पर्सन कैन इजीली सी दैट आपने क्या भेजा है, क्लियर टेक्स्ट। HTTPS में यही क्लियर टेक्स्ट जो है वो एनक्रिप्ट हो जाता है, बिकॉज HTTPS जो है वो एनक्रिप्टेड कनेक्शन के लिए यूज होता है। जब वो एनक्रिप्ट हो जाता है तो इसको इजीली पढ़ना मुश्किल होता है, उसमें बहुत टाइम लग सकता है डिक्रिप्ट करने में। अब वो डिपेंड करता है कौन सी वेबसाइट कितना स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन यूज कर रही है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, HTTPS डेटा को भी आप रीड कर सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है, बट उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ HTTP पे अभी। So let's use our Kane enable. Let's log in to Kane enable. वो एक स्निफिंग टूल है। So ARP poisoning tool, Kane enable, setup, yes. तो ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, मेनली सारे कंप्यूटर्स में बाय डिफॉल्ट आता है। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक Kane enable. ओके, अब Kane enable जैसे ही ओपन होता है, यू विल सी लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हियर। जब हम सक्सेसफुली स्नीफिंग कर लेंगे ना, तो विल बी एबल टू गेट एवरीथिंग इन हियर। हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी से हमको अपने सारे डिटेल्स जो मिलने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि पासवर्ड्स हो या कुछ भी हो। तो पहला स्टेप है क्या, कि आपको कॉन्फ़िगर करना है अपने टूल को। कॉन्फ़िगर करने में क्या होता है कि आपको अपना अडेप्टर चूज करना है। अडेप्टर मतलब कि किस अडेप्टर से आप स्निफिंग करना चाहते हो, क्योंकि जो स्निफिंग कर रहा है उसके पास भी अडेप्टर होना चाहिए जहां से कनेक्शन आएगा जाएगा। सपोज मेरे नेटवर्क में ये सारे के सारे और कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो विंडोज हो या कैली हो या उबुंटू हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ब्राउजर से हो रहा है ये चीज, क्योंकि ब्राउजर से डेटा आएगा। तो ये सारे के सारे मेन नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो इन सारे कनेक्शन को स्निफ करने के लिए मुझे अपना अडेप्टर यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं अपना मैक एड्रेस चेंज नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली मैं इजिली ट्रेस हो जाऊंगा, क्योंकि मैं हैकर हूँ। तो कोई जब कंप्लेन करेगा तो मेरा मैक एड्रेस इजिली स्निफ हो ट्रेस हो जाएगा। सो मैक एड्रेस चेंज करके आप ये परफॉर्म कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने अडेप्टर को सिलेक्ट किया। वंस यू सेलेक्ट योर अडेप्टर, जस्ट क्लिक ओके। अब कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। यस, देन उसके बाद यू विल बी हैविंग एन ऑप्शन हियर टू स्टार्ट एंड स्टॉप द स्निफर। ओके, click on that, we'll see a warning, just ignore it and click on OK. Now the sniffer is now started, ठीक है। स्नीफर स्टार्ट हो चुका है, गो टू द स्नीफर टैब। अब आप स्नीफर टैब में आ चुके हो। स्नीफर स्टार्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आईपी एड्रेसेस ऐड करना है, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑल होस्ट इन माय सबनेट या तो रेंज। आपको पता है कौन से आईपी तक है डेटा, तो ठीक है, नहीं तो आप सेलेक्ट करो सारा का सारा और सेलेक्ट दी ऑल टेस्ट, क्लिक ओके। अब ये सारे आईपी एड्रेस को स्कैन करेगा जो भी आपके नेटवर्क में अवेलेबल है। तो ये 16 है, 19 है, 14 है, 13 है, 9 है, ये सारे के सारे यहाँ पे हैं। अब ये स्कैन करेगा। Just wait for the
few minutes. ओके, सो इट्स डन। अब क्या करना है, आपके पास यहाँ पे आईपी एड्रेस का लिस्ट मिल गया, उसके मैक एड्रेस भी मिल गया आपको कि दीज आर सिस्टम्स व्हिच वी नीड टू, व्हिच वी कैन पॉइजन। ठीक है, फिर आप आओगे एपीआर टैब। एपीआर हो गया पॉइजनिंग वाला। तो एपीआर जो है उसके हेल्प से आप पॉइजनिंग जो है वो शुरू करोगे। यहाँ पे हमको एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, आरडीपी, एफटीपी सारे प्रोटोकॉल्स का लिस्ट मिला। कोई डीएनएस से होगा तो डीएनएस का आ जाएगा, कोई एचटीटीपीएस होगा उसका भी आ जाएगा, एचटीटीपी होगा उसका भी आ जाएगा, सबका आ जाएगा हमको। एफटीपी से कोई लॉगिन करने का ट्राई करेगा उसका भी आ जाएगा। जब एपीआई टैब में आओगे आपको पहले यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, इधर। तो यहाँ क्लिक करोगे तो ये प्लस आइकन जो है वो विजिबल हो जाएगा। सो यहाँ पे ऐड करो। अब आपको ये आईपी एड्रेस जो पहले स्टेप में मिले थे इसमें से आपको सेलेक्ट करना है किस आईपी एड्रेस के बीच आपको कनेक्शन को ट्रेस करना है, इसके बीच और किसके बीच। अगर मैं ऐसे करूंगा तो 1 और 9 के बीच का डेटा पूरा ट्रेस होगा। अगर मैं ये करूं तो 13 और 1 के बीच पूरा ट्रेस होगा। 1 जो है वो किसका आईपी एड्रेस है, एनीवन? This 10.10.10.1 is IP address of which system? गेटवे, यस। वो एक तरह से कह सकते हैं राउटर का है, गेटवे का है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम और उस सिस्टम के बीच का पता लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 तो नहीं आ रहा है। So let's do one thing. Let's select everyone here. 1 और इन सबके बीच का, ठीक है। ओके, तो ये सारे आइडियल हो गए, ठीक है। नाउ so configure, जो टारगेट आईपी है हमारा उसको सिलेक्ट करना है हमको, जो है विंडोज सर्वर 2016। लिस्ट, ठीक है। सो आपको वो टारगेट का सिलेक्ट कर लेना है। देन सिलेक्ट करने के बाद यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट एंड स्टॉप एपीआर। ओके, क्लिक हियर। ओके, अब देख सकते हो कि यहाँ पे पॉइजनिंग शुरू हो चुका है। ठीक है, सब सिस्टम जो पॉइजनिंग शुरू हो चुके हैं। जब पॉइजनिंग शुरू होगा और जब उस आईपी एड्रेस से डेटा आना शुरू होगा तो आपको यहाँ डेटा जो है विजिबल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम विंडोज 16 में जाते हैं और कुछ ट्राई करते हैं करने का। My network was disconnected. Every one of you able to hear me? Yes, okay. सो वहाँ चुके हैं विंडोज 16 में और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कुछ कुछ सॉफ्टवेयर यूज करने। 1 second, 1 second. 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 1 sec
ठीक है, फायरफॉक्स पहले यूज करते हैं। आपको विंडोज 10 में क्या दिखाई देगा, यहाँ पैकेट्स आना शुरू हो रहे हैं, यू सी सारे सारे पैकेट्स शुरू हो रहे हैं आना, राउटिंग राउटिंग राउटिंग। अब आपको आना है पासवर्ड टैब में। अब यहाँ पे जैसे ही किसी का पासवर्ड डिटेक्ट होगा आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई एफटीपी से आएगा तो यहाँ आ जाएगा, एचटीटीपी से आएगा यहाँ आ जाएगा, आईएमएफ से आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, एलडीएपी से आएगा यहाँ आ जाएगा, सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, पहले ट्राई करते हैं एचटीटीपी वेबसाइट से कनेक्ट होकर कुछ करने का। ठीक है, तो सिंपल सा ही काम करते हैं हम, एचटीटीपी वेबसाइट का एग्जाम्पल लेट्स सी, just a minute. Let me get some list here. Yeah, I got one. HTTP support.withfloats.com। तो ये एक HTTP वेबसाइट है, देख सकते हो HTTP है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ट्राई करते हैं लॉगिन करने का, एडमिन पासवर्ड। तो ये गलत भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन है। तो मैंने लॉगिन किया, यूजर नेम गलत बताया, बट इसका लॉग जो है वो क्रिएट हो गया होगा अब तक। तो आप देख सकते हो कि वो दिखा रहा है HTTP में। यहाँ क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कौन से सिस्टम से रिक्वेस्ट आया है और यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। क्लियर। अब सेम तरीके से हम अगर FTP से लॉगिन कर रहे हैं तो उसका भी आ जाएगा। जैसे कि कोई FTP से लॉगिन कर रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी अपना काम कभी कभार किसी नेटवर्क में कनेक्ट होकर करते हैं, कभी कभार एयरपोर्ट पे बैठ के करने लग गए, कभी स्टेशन में बैठ के करने लग गए, वही वाईफाई यूज करके। आप उस वाईफाई में स्निफिंग करो तो आपको हो सकता है बहुत से डेटा मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओ, बस वेट करो डेटा आने का, बहुत से डेटा आएंगे। ठीक है, आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब जगह वाईफाई तो अवेलेबल होगा ही ऑब्वियसली। आप अगर कनेक्ट हो जाओगे KNNable की हेल्प से, तो यू कैन स्निफ एनीथिंग। सो CMD में हम FTP कनेक्ट होने से ट्राई करते हैं। सो FTP 10.10.10 विंडोज सर्वर से FTP कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमको यूजर नेम मांगा, यूजर नेम में टाइप कर देते हैं जेसन, जो भी है डिफॉल्ट जेसन, पासवर्ड क्वेरी। सो हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। अब जाके देखते हैं हम लोग विंडोज 10 में। FTP कनेक्शन शायद आया होगा, तो ये FTP कनेक्शन दिख रहा है, जेसन क्वेरी। तो इस तरीके से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। वायरशार्क एक स्निफिंग टूल है, बट वो एक पॉइजनिंग टूल नहीं है। वायरशार्क से आप पासवर्ड ऐसे इस टाइप का आपको इंटरफेस नहीं मिलेगा करने का। वायरशार्क हम लोग देखेंगे जब HTTPS वाला करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब वायरशार्क देखेंगे। वो एक और स्निफिंग टूल है, वो थोड़ा अलग यूज है उसका। KNNable पासवर्ड स्निफ करने के लिए यूज किया जाता है। वाईफाई पासवर्ड विल सी वंस वी स्टार्ट द वाईफाई मॉड्यूल, अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं है वो। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज KNNable। ठीक है, FTP का आया, HTTP का आया, एंड कोई अगर मेल में लॉगिन करेगा मेल का आ जाएगा, कोई SMTP में करेगा उसका आ जाएगा। वो डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि मिले ही आपको, बट HTTP FTP ये सब का आप आते रहेगा अगर आप किसी बड़े नेटवर्क में आप कनेक्ट करते हो। ओके, सो दैट्स हाउ वी यूज द KNNable। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी डू द पॉइजनिंग एंड ऑल। सो आप देख सकते हो कि API पॉइजनिंग हो रहा है, पैकेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। आप बस पासवर्ड टैब में जाओ, कर सकते हो। कोई VoIP हो रहा है उधर, सभी आप देख सकते हो। सो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है,
वायरलेस हैकिंग वाला भी आपको चल जाएगा पता इससे भी, सो वो मैं कवर करूंगा जब हम वाईफाई हैकिंग वाला स्टार्ट करेंगे टॉपिक, देन विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, क्रैकर में हम विंडोज का पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे, सो जो क्योंकि केन एनेबल सिर्फ इसी मॉड्यूल में यूज नहीं है, बहुत से मॉड्यूल हम यूज करेंगे, अलग अलग तरीके हैं उसको यूज करने के लिए। हाँ, मोबाइल डिवाइस में भी कर सकते हो आप, बिकॉज मोबाइल डिवाइस भी अगर उस नेटवर्क से कनेक्टेड है, जैसे कि आप प्रैक्टिकल करोगे, आप जब असाइनमेंट करोगे ये वाला, तो आप एक काम करना, अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करना, ठीक है, उस मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन करके उस हॉटस्पॉट्स में उस हॉटस्पॉट में 2 लैपटॉप कनेक्ट करते हो या 2 मोबाइल फोन कनेक्ट करते हो, बट एक तो लैपटॉप होना चाहिए केन एनेबल के लिए। मोबाइल में हॉटस्पॉट में इंटरनेट जरूरी नहीं है कि एक्टिव हो, बट एक्टिव कर लेना, और देन आप क्या करना, एक लैपटॉप पे केन एनेबल स्टार्ट कर देना, देन यही प्रोसेस फॉलो करना, उसमें आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर लेना जिसमें गेटवे कौन सा होगा, आपका मोबाइल का आईपी एड्रेस, और टारगेट सबको सिलेक्ट कर लेना। देन उस लैपटॉप से आप ट्राई करना किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करके, उसका आपको आ जाएगा केन एनेबल में। मोबाइल फोन से भी ट्राई करोगे कोई ऐसा चीज, तो मोबाइल फोन का भी डेटा आपके में आ जाएगा। तो मोबाइल फोन हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, कोई भी डिवाइस हो, सबका यहाँ पे स्निप हो जाएगा। Raspberry Pi is not a hacking tool. Okay, so that's it for this session, everyone. As an assignment, you all need to perform this Kane enable practical MAC address spoofing and all. Okay, go through that, perform this, and in the next session, what we'll do is we'll be proceeding with the which topic is left now? Yeah, DHCP poisoning. Okay, DHCP poisoning, how to do MAC flooding. ठीक है, पासवर्ड स्निफिंग तो हम लोगों ने केन एनेबल से भी देख लिया, बट हम उसको वायरशार्क से भी देखेंगे कि वायरशार्क से कैसे पासवर्ड स्निफ कर सकते हैं, HTTPS का भी। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। अब आपको भी ऑब्वियसली आपको पता है कैसे करना है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कैसे बचा जाए, तो कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम ARP पॉइजनिंग और ARP अटैक्स से। ठीक है, सो दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, that's it for today's session, everyone. You can now leave the class. We'll upload the recording as soon as possible. Okay, thank you for joining, everyone. Bye bye, have a good day ahead.